So we have done a lot of inserts and we have done a lot of gets, right? So you're familiar with post and get mapping now, and response entity also. So you could run get by first name before this date, percentage. So we have done customized queries also and JPA query also. Let's now try to do a update. Okay, first let's do a delete first. So let me do a delete mapping. And we'll do delete student. Okay. And you always use on the primary key. So public, and let's say we'll give a string as a response and say delete student. We need to pass the ID of the student or name of the student. So either you pass it by a path variable like over here, or you can pass as a request body. So let's say RNO at the rate path variable integer RNO, and then what we'll do, we'll send this to the student service dot delete student RNO. And once this is done, we'll return student record delete. Now this method is not there, create it. Okay. And this will hit the student repository dot delete by ID. Which ID? That's all you have to do in your delete method. Save it. Is the application running? Yeah, it's still running since yesterday. Okay, better we stop it and try to do a rerun. And let's prepare a delete and delete student. Okay, I'll save this. I'll first then get the list of students which I have. As of now, it's not connected. It's still starting. Takes time initially. Once started. Started. Do a send. So I have one Rajesh, Alice. I have two. Okay, so if I want to delete Alice C, what will I pass as a parameter? To do a send which says student record deleted. Now if I try to get the student list, I have only one record. Okay. Now if I insert some records, so post student by
Did I not add multiple students? Did I not add multiple students? There is no endpoint which I am passing many students. So save student by request params and then request body. So let me pass many students and save together. Save save multiple students using request body. So now whatever I will pass will be a list of students, and then we will pass this to the save all students endpoint. Save all students. Now is the function there? Not there. Create it. And what will this give me in return? List of students, right? So if I go to the controller over here, it will give me a list of students, right? I do a save, and now we'll go and modify the return type of this method. Will be list of students. Okay. So and then we have a student repository function. Save all. Which one? Save all and pass what to it? Okay. Now everything looks good. So which is the endpoint? Using request body. So I'll make a new mapping. Add request. Post. Okay. Okay, just a second. Save हो गया. And now in the body, I have to go raw JSON and pass the. I've saved this, right? So you have to pass what? Raw JSON. I will not pass this, right? Column also will not pass. Let's pass your guess, your names only. Okay. Will be नाम देते रहेंगे. Karan Singh name. First object, comma, second object,
ठीक है, ओके 3 रिकॉर्ड इंसर्ट सेंड करता हूँ मैं। ओके, नाम में इशू आया क्या, अमय के? सिंह पे भी इशू आ रहा है। कुमारन, कल्पेश खन्ना, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? फर्स्ट नेम किसका छोटा है अभी? करण का। हो गया। तो देखो एक साथ ये सब इंसर्ट हो गए। अब मैं करता हूँ गेट स्टूडेंट लिस्ट, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर लेगा। ठीक है, ओके। अब मुझे अपडेट जो करना है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना अपडेट के ऊपर। अपडेट इज अ बिट इंटरेस्टिंग। So I'll fetch, and so it is showing you the modified times also, everything it will show over here. This table refreshing. Okay, so if I fetch and print and paste the students record, let's say मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, फिलहाल इसका ही ले लेता हूँ, तो बाद में। So the record which I wish to update, so let's say I want to update Rajesh's record. So I will pass two things to it. First, the roll number which I wish to update, which is that, and then the new details. Then the new details. So new detail will be a student object, will be a student, the entire object. Okay, so I'll pass the entire object for the new details. So I want his age to be 27. I want his DOB. Don't pass anything. Not necessarily you have to pass all the parameters. See, I'll show you. Don't pass the date of birth. You can't change date of birth, right? Email. Okay. जेंडर भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। लास्ट नेम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में लास्ट नेम ऐसा लिखा है ना। ये नहीं होगा ना। ठीक है, लेट्स से यही चेंज करते हैं बस। तो स्टूडेंट नंबर 1 का क्या क्या चेंज करना है हमको? एज, ईमेल, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी यू हैव टू पास एवरीथिंग, वॉट एवर, इवन इफ पास वन एट्रीब्यूट इट क्वालिफाइज एज अ वैलिड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें थिंग्स विल आई पास टू, द first the employee number which you want to read, the id attribute. This I will pass as a path variable, as a path variable. And second, I'll pass the new data. I'll pass the
new data as a object via request body. So let's try to design the controller for this. So which mapping will I use for update @ put mapping? Okay, slash update student, and I'll pass the roll number as the path variable, right? We can return the updated student. So you can return the response entity. Function name. And then you'll also take the request body with the new details, right? And you also use the path variable, right? Path variable, we are taking a PR. Okay? नहीं नहीं कुछ ऑर्डर मैटर नहीं करता है. आप इसको यहाँ डाल दो, उसमें कोई ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं है. तो रिक्वेस्ट बॉडी दे दिया स्टूडेंट्स. ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारा टेम्पलेट है वो ले लेते हैं. रिस्पॉन्स एंटिटी क्या करेंगे, फंक्शन को ये फंक्शन ले लेंगे, कौन सा, और क्या पास कर देंगे उसको, RNO पास कर देंगे और न्यू डिटेल्स पास. ये फंक्शन है क्या, ये मुझे देगा, एक स्टूडेंट देगा ना, क्या देगा मुझे, एक ही अपडेट हुआ है ना. ये फंक्शन है क्या नहीं, तो इसको क्रिएट कर लो. ओके, तो इधर आ गए अभी, ऑल गुड. अब यहाँ क्या करना है, सर्विस में आके सबसे पहले ये रोल नंबर 1 को डेटाबेस से फेच करके लेके आओ. क्या करो, तो स्टूडेंट रिपोजिटोरी, ठीक है, डॉट फाइंड बाय आईडी. फाइंड बाय आईडी भी नहीं करना है, अपना पास लोकल मेथड खुद का है, गेट स्टूडेंट दिख रहा है. तो सिर्फ मैं क्या दूंगा, तो मैं मेरा खुद का, मेरा लोकल फंक्शन है, स्टूडेंट सर्विस का है ना, वो खुद का फंक्शन, लोकल फंक्शन है. तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, गेट स्टूडेंट कौन सा, जो हमने यहाँ पर लिया है. तो ये मुझे क्या दे देगा लाके, जो रोल नंबर वाला स्टूडेंट है वो. तो रोल नंबर को क्या पास किया मैंने, आई हैव माई ओन लोकल मेथड, नो सेम मेथड है उसी क्लास का, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा बगैर ऑब्जेक्ट के. और क्या पास किया मैंने उसको, रोल नंबर क्या आया है ना, रोल नंबर कहाँ से आया है, हमने यहाँ से रोल नंबर भेजे है ना. रोल नंबर ट्रैवल से, ट्रैवल से अपडेट स्टूडेंट, एंड आई विल से व्हाट, 1 किस में आ गया, रोल नंबर में. अब उसने क्या किया, 1 का रिकॉर्ड फेच करके लेके आ गया डेटाबेस से. तो ये रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच होके आ गया. ओके, यस. इसको मैं स्टोर कर लूंगा एक स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी से. स्टूडेंट फ्रॉम, कौन सा किया, स्टूडेंट फ्रॉम. अब ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट फ्रॉम, ठीक है. अब इसके सारे सेटर यूज कर लेंगे हम लोग. क्या क्या चेंज करना है इसका, एज. तो क्या करेंगे, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट सेट एज. कहाँ से लाएंगे वो एज,
न्यू डिटेल्स से, न्यू डिटेल्स डॉट गेट एज, है ना। तो इसका एज क्या है 21, इसका एज क्या है, तो क्या हो जाएगा 21 निकल जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा इधर, जो भी मुझे चेंजेस करना है 27 आ गया। और क्या करना है, आई एम चेंजिंग दिस ऑब्जेक्ट, ओके, आई एम चेंजिंग विच ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी। तो स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट सेट ईमेल, क्या, न्यू डॉट गेट ईमेल। तो इसका जो ईमेल है क्या था, rajesh@gmail.com, ये सेट हो जाएगा कौन से वैल्यू से, जो इसका ईमेल होगा, क्या होगा, सही है। और फिर स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट सेट क्या, हाँ, सेट फर्स्ट नेम, कहाँ से, न्यू डिटेल्स डॉट गेट फर्स्ट नेम, क्या है वो, राजेश निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा उधर, ईशा। और अभी ऐसे क्या करेंगे हम लोग, लास्ट नेम में निकाल के क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, राइट। तो कैसे क्या है वो, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट सेट लास्ट नेम, दैट वुड बी न्यू डिटेल्स dot get last. Now this is modified and I will save this back to the database. Student repo dot say what, which is the new, which is the object which is modified. सारा डिटेल्स किसके पास है, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी के पास है, एंड आई विल रिटर्न दैट बैक बिकॉज हमने बोला है कि वी विल रिटर्न अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट। हो गया, फंक्शन खत्म, ठीक है। लेट्स राइट इट ओवर हियर इन द स्टूडेंट सर्विस। तो यहाँ पर आ गए, तो पहले क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले स्टूडेंट फ्रॉम डीबी कहाँ से लाया, ऊपर ही है ना एक फंक्शन गेट स्टूडेंट, और क्या पास कर दिया उसको, रोल नंबर ला के दे दिया उसने। अब क्या करो, फ्रॉम डीबी के सेट करो, क्या क्या सेट करना है, ईमेल करना है, गेट, तो क्या क्या सेट करना है बोलो अभी इसके, हाँ, फ्रॉम डीबी डॉट एज करना है, कहाँ से, डॉट गेट एज, और फ्रॉम डीबी डॉट सेट फर्स्ट नेम, कहाँ से, डॉट गेट फर्स्ट नेम, और डॉट सेट लास्ट, सही है। क्या कर दो फिर इसको, तो यहाँ किया है तुमने, तो अपन ने सेव स्टूडेंट किया है ना,
तो ये किया है बस किसका सेव स्टूडेंट फंक्शन पास कर दो क्या? वही फंक्शन लिख दो क्या? सेव फंक्शन कौन सा? वो वर्ड रिटर्न कर रहा है ना? वर्ड रिटर्न कर रहा है ना? ठीक है, तो सेव स्टूडेंट भी कर दिया तो सही है। सेव हो गया रीरन, कंप्यूटर में आ गए। क्या बना रहे? क्या पास करना है इसको पहले तो? 1 पास करना है पहले तो 1, और फिर रिक्वेस्ट बॉडी में रॉ में जेसन भी पास करना है एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। मैपिंग क्या है? मैपिंग है फर्स्ट में भेजना है विशाल, फर्स्ट में भेजना है, लास्ट में भेजना है और एज भेजना है और इमेज भेजना है। ठीक है, सेंड करता हूँ मैं। तो रोल नंबर 1 को विशाल कोटे पाटिल 27 सब कर दिया। ठीक है, यहाँ जाके चेंज देख लो। अभी 1 क्या है? राजेश कुमारन है। रिफ्रेश करते हैं तो विशाल कोटे पाटिल है। हाँ, मॉडिफाइड डेट भी अपडेट हो गई है ना? किया था क्रिएट 11/2 को, 12/2 को सुबह मॉडिफाई। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इफ the user has not passed the email? So if the user has not passed the email, what will happen? It will set it to null. It will set it to null. So I will take any other name, Abhishek Sharma, age 27, roll number 2. Okay. So roll number 2, Abhishek Sharma, age. These are valid keys for the student object, no? Even if you pass one key, it's a valid student object. It should not be a problem. So now as I do a send, so error generated number. Okay. Okay, there is no 2 number. Okay, there is no 2. So I'll pass 3. From there. We have a 3, right? Hmm? ये सेट हो जाता ना null value.
नल वैल्यू सेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ तो फिर नल दे देगा ना। इट इज नॉट देयर, नो, इट विल गिव नल। नहीं दिया। ओके, नॉट नल दिया है क्या? नहीं, यहाँ पर अपन ने कुछ पास ही नहीं किया ना, ईमेल पास ही नहीं किया है। तो यहाँ पर when it comes to this email, we'll set it null if it is not passed. So let's add those validations. If new details dot get email is not equal to, then do this. If dot get age is not null, then set the age. This will be a type int, right? So if I am new details dot get age is empty, right? You can just check it over here. What is it checking? Yeah, if dot get age is not equal to null, yes, that's what you're trying to do. Is not equal to null. The operator is undefined for the argument type int. Why is it saying this? And same only we can use this also. New to details dot first name is not equal to null. Add it and put a if over here. If new details dot get last name is not equal to null. So what is the workaround for this? The operator, how do we check for age is int type? You cannot directly check null because it's a primitive type. You have to use a wrapper class. You have to use a wrapper class in the entity then. In the entity, you have to change it to a integer. आखिर integer आता है ऐसा। तो हूँ डॉट एज को इंटीजर में टाइप कास्ट किया और चेक कर रहा हूँ कि नल है क्या नहीं। बाकी जो भी सब ले सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया। लेट्स नाउ गो अहेड। चालू है क्या?
चालू है। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट। आ गया। अभिषेक शर्मा 27 और बाकी ईमेल वही रहा जो पुराना था। ठीक है। वहाँ करण नॉट नल नहीं होता ना, उसके लिए एरर दिखा रहा था। यहाँ पर ईमेल के अंदर हमने करण को नॉट नल बोला है ना, स्टूडेंट एंटिटी के अंदर। स्टूडेंट एंटिटी में हाँ यस, ईमेल क्या बोला था, तो वो उसका इशू आ रहा है। तो एक तरीका तो ये है वैलिडेशन करने का इधर, और एक तरीका और है कि एक ये तरीका है, ये बार बार इफ लगाना पड़ रहा है। और एक आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, हाँ, सेट करने के लिए कि अगर वैल्यू है तो वहां से ले लो, ये वाला। तो ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर्ड नल और एल्स, क्या रिक्वायर नॉट नल, ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर नॉट नल। और तो अगर ये, नहीं तो हम लोग किससे लेंगे, न्यू डिटेल से लेंगे। अगर ये नल रहा तो फिर उसका पुराना वाला ही ले लेंगे। कहाँ से, स्टूडेंट डीबी का ही ले लेंगे। स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट गेट, वो क्या बोल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट वो कर लो। ये ब्रैकेट किसका है, इसका, ये ब्रैकेट किसका है, इसका ब्रैकेट किसका है, इसका। The method string is undefined for the type object। क्या किया है इसने, ऑब्जेक्ट इज दिस, और देखो सेट ईमेल कर रहे हैं, रिक्वायर नॉट नल, अगर ये वैल्यू नॉट नल है तो इसको सेट कर दो, और अगर ये नल आई तो फिर इसको सेट करो। बट रिक्वायर ऑब्जेक्ट सेट ईमेल, है ना। तो ये अभी क्या बता रहा है कि चेंज रिक्वायर नॉन नल, रिक्वायर नॉन नल है ना, नॉन नल एल्स। ओके, ऐसे ही किसी सबको कर दो, एज को भी ऐसे कर दो, एज तो क्या होगा, ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर नॉन नल, क्या गेट एज, और अगर नहीं तो इसी का एज डाल देंगे। नॉट एप्लीकेबल फॉर टाइप इंट, यहाँ तो इसमें नॉन नल एल्स भी है ना, रिक्वायर नॉन नल ही है, रिक्वायर नॉन नल है, रिक्वायर नॉन नल है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, एल्स तो है ही नहीं। देखते हैं, तो थोड़ा कोड लिख लेते हैं पूरा। तो रिक्वायर नॉन नल किसका, सेट फर्स्ट नेम में, सेट फर्स्ट नेम, नहीं है तो इसी का ही फर्स्ट नेम सेट कर देंगे, अगर है तो
इसका यू नो यहाँ गेट है ना, और सेट क्लास टू कहाँ से, ये क्लास नेम है, किस क्लास नेम ये हो रहा है। और अभी तो इशू आ रहा है कि एल्स ना, एल्स 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 क्या बोल रहा है ये, मेथड इज अनडिफाइंड, कंट्रोल वी मेथड इज अनडिफाइंड, they are got because the cannot be used directly in primitive type, प्रिमिटिव पास नहीं कर सकते, वो प्रिमिटिव टाइप के लिए यूज नहीं होता है वो, क्या करना पड़ेगा उसको, ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर नॉन नल और प्रिमिटिव एज, यू नीड टू डू इट लाइक दिस, तो वो करना पड़ेगा अपने को वापस फिर उसको ना, जो अपन ने लास्ट टाइम किया था, रिक्वायर न्यू डिटेल्स डॉट गेट ईमेल, क्या करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। तो बाकी भी तो नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग को भी तो कहाँ आ रहा है, object or require works of string or other is applied to the email, कहाँ आ रहा है वो, ऑब्जेक्ट डॉट रिक्वायर नॉन नल एल्स, उसको भी कहाँ आ रहा है वो, चेंज टू रिक्वायर नॉन नल, चलो ठीक है, तो वापस वहाँ ले लेंगे, क्या नहीं, कहाँ ले रहे हो, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर द टाइप इंटीजर, इंटीजर में भी नहीं ले रहा है, रिक्वायर नॉन नल नहीं, पर वो रिक्वायर नॉन नल एल्स ही है, रिक्वायर नॉन नल एल्स is it supported in JDK 1.8, नो द 9 ऑनवर्ड्स है, किससे वो, JDK जहाँ वर्जन 9 ऑनवर्ड्स है वो, तो अपने को अगर कोई 9 वर्जन यूज़ कर रहा है तो चल जाएगा, तो लेट्स स्विच टू 1.7, लेट्स स्विच टू कौन सा, स्प्रिंग बूट वर्जन क्या, 17, सेव करता हूँ, 17 9 के ऊपर ना, 17 किया, इसको स्टॉप करता हूँ पहले,
और फिर प्रोजेक्ट अपडेट करता हूँ, मैवन अपडेट। जब भी कुछ वर्जन चेंज करो तो you'll have to do a मैवन अपडेट। तो ये एंड रियल टाइम में बहुत इशू आते हैं इसके वर्जन्स के। राइट क्लिक किया, मैवन प्रोजेक्ट अपडेट किया, ठीक है। अब गए स्टूडेंट सर्विस में, 17 आ गया दिख रहा है, और यहाँ पर गए, अब वो एरर निकल गया, ठीक है। लेट्स से अब रन करते हैं एप्लीकेशन को, रन एज। मेजर माइनर नहीं आना चाहिए, मेजर माइनर। कभी कभी क्या होता है, अगर पुराने वर्जन पे कंपाइल हुआ है और आप नए पे रन कर रहे हैं, नया उल्टा, तो वो मेजर माइनर एरर एरर थ्रो करता है। तो मेजर माइनर एरर आया तो समझ जाना कि वर्जनिंग का इशू। ठीक है, तो वो उस जेडी की फंक्शन सही था, उस पर वो हेडलाइन दिखा रहा था। इट मीन्स कि उस जेडी के किट में वो फंक्शन नहीं था। हमने जेडी के किट को अपडेट कर दिए, चलो हो गया। नाउ आई गो एंड हिट अ पोस्ट। ये रोल नंबर 3 को मैं कर रहा हूँ अक्षय से। अक्षय, कोई भी नाम दे दो, राजा 33, और सेंड करता हूँ। हो गया, अक्षय राजा वो। और ईमेल को टच नहीं कर रहा, तो वो अगर कोई चीज़ में नल भेज रहा हूँ तो पुरानी ले रहा है वो। ठीक है, अभी एज पास कर रहा हूँ क्या, ठीक है। अक्षय कुमारन, कुमारन सिंह, ठीक है। और उसको कुछ और नाम दे देते हैं, विद्यु। तो अभी ओके, वो नल है ना, वो चीज़ नल नहीं हो सकती। क्या हो गया अभी, एरर व्हाइल कमिटिंग द ट्रांजैक्शन, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। नहीं, 20 तक दिया है ना, 20 तक दिया है। 20 तक तो दिया है, यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा है। एरर व्हाइल कमिटिंग द ट्रांजैक्शन, फर्स्ट नेम दिया है और लास्ट नेम दिया है, 3 को, 3 को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो क्या, तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, अगर न्यू डिटेल नहीं तो स्टूडेंट डीबी से डाल दे ना। अगर ईमेल आया है तो न्यू डिटेल से ले ले, नहीं आया तो स्टूडेंट डीबी से ही ले। और एज से आया है तो यहाँ से ले ले, वरना एज यहाँ से ले। और फर्स्ट नेम यहाँ से आया तो यहाँ से ठीक है, वरना यहाँ से ले। और लास्ट नेम यहाँ से आया तो ठीक है, वरना यहाँ से ले लेता हूँ। और वो हम सेव कर दे डेटाबेस। तो if I pass this to, which ID do I have? Do I have 4? Yes, and I do a send. तो ये roll back exception error while committing the transaction.
ट्रांजैक्शन नेस्टेड एक्सेप्शन, अगर हम लोग ये अपडेट में जो कंट्रोलर बनाया है, जो कंट्रोलर बनाया है अपडेट में ई डॉट, पर वो रिटर्न नहीं होगा फिर खुद अपने आप में फिर मैसेज आ रहा है वो फिल इन टैक्स। अब देखते हैं, बंद हो गया एप्लीकेशन, रिस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है while committing the transaction could not commit JP transaction nested exception in Java possession rollback bad request for roll number 4, and if I pass the email then अभी क्या होगा? अब सब ले रहा है। एज का प्रॉब्लम है, ओके। तो एज का अपन ने कुछ दिया है क्या एंटिटी वैलिडेशन में? हाँ, तो अगर मैं सिर्फ अगर एज पास कर दूं अभी, सेंड कर दूं, तो सिर्फ एज ले रहा है। एक भी पास किया तो वैलिड हो जाता है वो। तो जो इससे आ रहा है वो ले रहा है, बाकी पुराने का ले रहा है वो। हाँ, मतलब तो मतलब नहीं नहीं, वैलिडेशन में जो एज वो दिया है क्या? पर एज तो ऑलरेडी वैसे वैसे हो ही है ना, प्रिमिटिव पे काम नहीं कर रहा है मतलब ये जो है ये प्रिमिटिव में काम नहीं कर रहा है मतलब, ये एज वाला ऐसा बोलता है। हाँ, क्या बोल रहा था? देखता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब बगैर एज के बेचते हैं, देखते हैं। वही आ रहा है, एज का इशू आ रहा है, तो इंटीजर पे काम नहीं कर रहा है ये, तो इंटीजर पे काम नहीं कर रहा है।